Good day friends, I'm Reena Mahajan and you're watching me on English Oasis. Let's begin with the editorial section of today's newspaper, The Hindu. The vocabulary words for today are amendment. Amendment is change to a law or legal document. किसी भी legal document के अंदर, law के अंदर changes करना, even constitution में या फिर किसी भी legal document के अंदर changes करना is amendment. Appellate is law or attempt to take a legal action or decision. So appellate is trying to change something or something related to laws. Aggrieved is sadness, resentment for unfair treatment. हम किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाएं और या फिर बहुत रिजेंट करें, बहुत ज़्यादा दुखी हों, उसके अगेंस्ट हो जाएं, किसी भी अनफेयर ट्रीटमेंट, कोई इनजस्टिस हो हमारे अगेंस्ट या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट हो, उसके लिए we are aggrieved. The expression is aggrieved. The word is grief, grieved, aggrieved, right? Commitment. Commitment is a promise, obligation or responsibility towards something. All citizens should have a commitment towards the upbringing of the society to make social welfare changes. The next is have no axe to grind. That is a phrase that means have no opinion to influence your decision. आपका influence ना हो किसी भी decision के ऊपर और उस decision को unbiased manner में this is not biased, unbiased manner में बिल्कुल fair और justified way में करना is have no axe to grind, right? Agenda. Agenda is the list of things that have to be discussed in a meeting, that have to carry forward on a meeting, or they have to be followed in the meeting. So the list of that is called the agenda, and that is usually made before the meetings are done. That is sent to all the members so that they should know what is there to be discussed. Next is disseminate. Disseminate is spread wisely. This is usually used for some information. Disseminate is information को आगे forward करना, which should be done very wisely. The media has a responsibility to disseminate information in a proper manner as well as for the social cause. Intermediaries. Intermediaries are person who links between people for an agreement. किसी भी agreement को करने के लिए maybe you can call them brokers or agents, जो भी बीच में एक link का काम करता है दो या चार parties के बीच में, so that the agreement can be done. उस agreement को बहुत अच्छे से करने के लिए that is called an intermediary, right? Next is covered itself with glory. So to be very successful, to earn the admiration of all is cover itself with glory. The Indian cricket team covered itself with glory by winning the trophy, right? Dissent is disagreement. Consent का antonym है dissent. Consent मतलब मान जाना, disagree करना is dissent, right? Leverage. Leverage, I have also written कौन सा noun है, adjective है, all the parts of speech are mentioned there. If for PH, a phrase is written as PH. So please check that also. Dissent is again a noun. Leverage is use something to maximum advantage, which is a verb. किसी भी चीज़ को maximum advantage के लिए use करना is leverage. The companies should go ahead to leverage all the key resources. Fine? Woes is sadness, despondence, gloom, desolation, distress. Woes is basically हमारी कोई भी problem जिसके जो बहुत ही हमें miserable कर दे, बहुत ही हम परेशान हो उसको लेके is a woe, right? So all these are the synonyms of woes. Implications is conclusion, inference, involvement. Implication is basically involve होना किसी चीज़ में या किसी का conclusion कि actually this implies that, ऐसा हम infer करते हैं या फिर conclude करते हैं. So all these are synonyms. Next is all hues and shades. It's a phrase. All hues and shades means all people, all variety, right? People of all hues and shades were present in the exhibition. The summit was a collection of
or the coming together of so many people of all hues and shades, right? Agitate, agitators, upset, perturb, fluster. These are all the synonyms of agitate. It's a verb. और agitate होना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, irritate हो जाना, angry होना या फिर frustrate हो जाना, upset होना, perturbed होना. All this is agitate, right? So let's begin with the editorial of today's The Hindu newspaper. All these words, आपको ये सारे वर्ड्स उसमें बहुत काम आएंगे, क्योंकि जब हम उसको समझेंगे तो हम इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स को भी साथ साथ एनालाइज करेंगे. सेकेंडली, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. जब तक आप सिर्फ इन वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते रहेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़. जब हम उनका यूज़ देखेंगे और उन कंटेक्स्ट में इन्हीं मीनिंग्स को समझेंगे, दैट मेक्स अ डिफरेंस, right? So please watch the video till the end and subscribe to the channel, share the video with your friends and like it if you have liked it, right? That is a very great sense of motivation to me. Please subscribe to the channel. The editorial for today's The Hindu newspaper is Control and Delete. किस बारे में है ये आर्टिकल? बेसिकली इट इज़ कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम एक गवर्नमेंट कमेटी बनाएंगे जो कि सॉल्व करेगी सारे प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया के. और ये आर्टिकल ये कहता है कि ये कितना सही है. शायद ये सही रास्ता नहीं है, सही सोल्यूशन नहीं है सोशल मीडिया को स्क्रूटनाइज करने का, राइट? The government's plan to set up a panel that can overturn content moderation decisions made by social media platforms is problematic. गवर्नमेंट का ये प्लान कि वो एक पैनल सेट करेंगे टू ओवरटर्न द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस, और कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए, उस तरह के डिसीजंस लेने के लिए मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए एक गवर्नमेंट पैनल सेट हो इज़ प्रॉब्लमेटिक इन मैनी वेज. ये डिसीजन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सही नहीं है बहुत सारे रास्तों में. The idea which has been proposed by as an amendment to the controversial IT rules, वो आइडिया जो कि किस तरह से प्रपोज किया गया है, एक करेक्शन टू द controversial IT rules is to constitute one or more appellate committees. वो आइडिया क्या है कि एक या ज़्यादा appellate committees, lawful committees बनाई जाएं which will have the final word on any content moderation issue facing a social media platform. और इसका इन कमिटीज़ का ही एक्चुअल कंटेंट मॉडरेशन जो है उन्हीं को फाइनल डिसीजन माना जाएगा कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड हों या ना हो, किस तरह से फैलें और किस तरह से नहीं फैलें. The trigger for these government appointed committees to come to life will be the problem. Trigger means problem. वो प्रॉब्लम जो ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाने वाली कमिटीज़ लाइफ में लेके आएंगी, वो क्या होगा? से एन अपील बाय अ सोशल मीडिया यूज़र. और वो किस तरह से, क्यों ये बनाई जा रही है अब कमेटी? क्योंकि एक सोशल मीडिया यूज़र ने अग्रीव्ड हुआ, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन हुआ, बहुत बुरा लगा बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्लेटफॉर्म्स ग्रीवेंस ऑफिसर. और इस किसी प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर ने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से दिस पर्सन वॉज अग्रीव्ड एंड ही फाइल्ड अ सूट, ही फाइल्ड अ केस, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये कहती है कि अब हम ऐसी कमेटी बनाएंगे जो कि डिसाइड करेगी कि ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ अपलोड हो या ये चीज़ ना हो. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रूल मेकिंग आर कमिटेड टू इंश्योर अ ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रूल मेकिंग क्या कमिट करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो ये इंश्योर करें कि एक ओपन, सेफ और ट्रस्टेड और अकाउंटेबल इंटरनेट हो. देयर इज़ वन प्रॉब्लम हेयर, एक कॉमा और एंड एक साथ नहीं आना चाहिए था. ये एंड नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, बट इट्स ओके. एंड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर इट्स यूज़र्स. और इस तरह का एक सेफ और ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट प्रोवाइड किया है अपने यूज़र्स को. एज इंटरनेट एक्सेस कंटिन्यूज़ टू रैपिडली एक्सपैंड इन इंडिया. अब इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूअली रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है. न्यू इश्यूज़ रिलेटेड टू द अबव कमिटमेंट्स
also keep emerging. तो नए नए issues आ रहे हैं इन सारी commitments को लेकर. They keep emerging means आते जा रहे हैं रोज़ रोज़ नए issues. The draft reportedly says it will be naive to think of such an aggrieved user. It will be naive to think ऐसा aggrieved user के बारे में ये गलत है सोचना as someone who has no axe to grind. जैसे कि उसके पास कोई भी biased decision लेने का कोई तरीका ना हो. No axe to grind का मीनिंग अभी हमने किया था. That is, have no opinion or influence your decision. That is, the decision is not influenced. With billions of users, social media is well and truly an influencing machine. बहुत सारे बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं थ्रू आउट सोशल मीडिया के. सोशल मीडिया में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. आपके फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपके गूगल, आपका ट्विटर, सब कुछ इंक्लूड होता है सोशल मीडिया में. तो इज़ वेल एंड ट्रूली एन इन्फ्लुएंसिंग मशीन. अब बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस करने वाली मशीन की तरह काम करती है ये. एंड फिल्ड विद इन्फ्लुएंसर्स ऑफ ऑल ह्यूज एंड शेड. और इन्फ्लुएंसर्स मतलब अपना इफ़ेक्ट डालने वाले लोग हर तरह के, हर क्वालिटी के अवेलेबल रहते हैं इन सोशल मीडिया के ऊपर. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी सेक. डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ नॉट टेकन ओवर बाय एनी वन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर. और किसी भी एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर के हाथ में नहीं जाना चाहिए सोशल मीडिया. मे इट बी द गवर्नमेंट, इवन इफ इट इज़ द गवर्नमेंट विद एन एजेंडा. मतलब गवर्नमेंट जिसके पास एक एजेंडा हो, पहले से सोची समझी सब कुछ, उनकी मीटिंग्स हो, उनका सोचा हुआ डिसाइड किया हुआ सारा कार्यक्रम हो, और उनके हाथ में भी नहीं जाना चाहिए सोशल मीडिया. बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द मैकेनिज्म विल हेल्प टू सर्व. और यही एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म हेल्प करेगा सर्व करने में. टाइटन द गवर्नमेंट्स ग्रिप ऑन मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज. और गवर्नमेंट की होल्ड, ग्रिप मतलब होल्ड, ज़्यादा हो जाएगी ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विच not long ago serve to disseminate alternative voices. और बहुत टाइम नहीं बीता है जो कि फैलाते हैं alternative voices को भी ये social media intermediaries. Imagine how absurd it would be. सोचिए कितना absurd होगा, कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा. For instance, if a government appointed committee sits to decide on an issue in which the aggrieved user is a government entity, वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी ही इस बात को डिसाइड करे कि जो अग्रीव्ड यूज़र है, जो परेशान यूज़र है, वो गवर्नमेंट एंटिटी है और एक रूलिंग पार्टी का मेंबर है, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है कि उनके डिसीजन बायस्ड हों. हाउ फेयर कैन दैट बी? कितना फेयर होगा ये? क्या ये सही होगा? वॉट मेक्स इट वर्स इट्स इन recent years the government has not covered itself with glory when dealing with dissent. और वर्स्ट बात क्या है कि गवर्नमेंट ने रीसेंट कुछ ईयर्स में अपनी ग्लोरी को कवर नहीं किया, यानी कि इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल, इट हैज़ नॉट अटेन्ड फेम और ग्लोरी. मतलब अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं शो किया गवर्नमेंट ने व्हेन डीलिंग विद डिसेंट, डिसएग्रीमेंट के लिहाज से. इन द रियल वर्ल्ड एंड ऑन सोशल मीडिया, this will not only add another layer of complexity to the problematic IT rules. ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं ऐड करेगी, बल्कि जो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक हैं IT rules that were introduced last year, but also another lever of government control. और ये एक तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल का एक और लेवल बन जाएगा, एक और लेवर बन जाएगा. The IT rules were widely criticized, including by this newspaper. और इस न्यूज़पेपर के थ्रू भी IT rules को बहुत वाइडली क्रिटिसाइज़ किया गया था. किस तरह से? एज डीपली अनसेटलिंग, कि वो बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग है, अनफेयर हैं. फॉर द काइंड ऑफ लेवरेज दैट दे गिव टू द गवर्नमेंट ओवर डिजिटल चैनल्स. जिस तरह से लेवरेज देते हैं वो, लेवरेज का मीनिंग अभी हमने ये किया था, दैट इज़ यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज. तो किस तरह से मैक्सिमम एडवांटेज दें वो गवर्नमेंट को ओवर डिजिटल चैनल्स विद ट्रबलिंग इम्प्लीकेशंस फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. और इससे क्या क्रिएट होगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही ट्रबलसम इम्प्लीकेशंस होंगी, यानी
ट्रबलसम रास्ता होगा आगे, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए ही बहुत ट्रबल्स होंगी. आयरनिकली दे वर लॉन्च्ड बाय देन मिनिस्टर एज अ सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म. और आयरनिकली ये तब के मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए गए थे. कैसे? एज सॉफ्ट टच इन ओवरसाइट मैकेनिज्म, कि एक सॉफ्ट टच कम परेशान करने वाला एक मैकेनिज्म रहेगा. इट इज़ जस्ट सिंपली फॉर द सेक ऑफ easiness. It should be noted that the last word has not been said on these rules. और लास्ट वर्ड तो नहीं कहा गया, यानी कि ये चीज़ हमें पता ही नहीं है कि फाइनली ये रूल्स कैसे होंगे. What with pending legal challenges on them, और पेंडिंग लीगल चैलेंजेस जो हैं इन पे वो भी रेगुलेट नहीं किए गए. All this is not to say that social media platforms should not be regulated. हम ये नहीं कहना चाहते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं किया जाए. Far from it. Far from it means इससे हम बहुत आगे कुछ कहना चाहते हैं. What should be clear after all these years is that a government committee is not the right answer for many woes. Woes means problems. बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट कमेटी एक करेक्ट आंसर नहीं है. लेट अलोन सोशल मीडिया वंस. सोशल मीडिया वंस वालों को तो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वालों को तो छोड़ ही दे प्रॉब्लम्स को. उसके अलावा भी गवर्नमेंट कमेटी बनाना एक सोल इसका वो नहीं है ऑल्टरनेटिव. एंड इन दिस केस इट कम्स विद डेंजरस इम्प्लीकेशंस. और इस केस में तो ये बहुत ही डेंजरस इम्प्लीकेशंस यानी कंक्लूजन्स के साथ आ रहा है फॉर फ्री स्पीच. इट इज़ बेस्ट देयरफॉर दैट द प्रपोजल इज़ ड्रॉप्ड. इसलिए बेटर यही है कि एक गवर्नमेंट कमेटी को बनाने का आइडिया, प्रपोजल अभी छोड़ दे, ड्रॉप कर दे. राइट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज एडिटोरियल. मीट यू विद अनदर एडिटोरियल tomorrow. Bye till then.